and he has been awarded the Best Science Teacher Award in Educational Department Delhi. So there are some big achievements, but the list is exhaustive and we don't want to go in details. We'll stick to the session. Welcome to the panel, Anil sir. Welcome today. Okay. So next Thank you, madam. Thank you, Anil sir. So next we have with us today, हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं Ranu Roshan sir. So he is a teacher from Orissa, a dedicated teacher who is enthusiastic and passionate about work. अगर इनकी बात करें, then he is also an awardee from Aurobindo Society, and he's also an awardee at local level in his domain. He believes in practical learning in education, and he विजुअल एजुकेशन इन अ वे कि जितना उसमें प्रैक्टिकलिटी इंक्लूड किया जा सकता है, जितना उसको एक्सेसिबल बनाया जा सकता है बच्चों के लिए, उतना ज्यादा बेटर होगा. सो वेलकम टू आवर पैनल, रानू रोशन सर. Thank you, ma'am. Okay, so next we have with us a beautiful lady from Goa, Sindhu ma'am. So when we talk about Sindhu ma'am, बहुत कम आपको ऐसे एजुकेटर्स मिलेंगे, लीडर्स मिलेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्लियर करके स्कूल के लीडर बने हैं, जिनके स्कूल को खुद MHRD 2 बार ट्वीट कर चुके हैं about the practices she is following. 30 schools all over from Goa keep on visiting to her school because उन्होंने कुछ ऐसे high level parameters वहाँ पे set किए हैं with respect to education, with respect to framing of the curriculum. हम सब तो यहाँ पे curriculum follow कर रहे थे, but she was a participant in designing the curriculum, the national curriculum for ICT, for this online education system sitting there in Goa. So she has done some amazing work. If I talk about the awards she has won, so I think she has a lot many awards in her kitty at personal and at school level. But yes, she is the only one school from Goa to get 2 national awards. It's her school, and also she has been the youngest head of a public school. So Sindhu ma'am, it's wonderful to have you as part of the panel today, and we look forward to learn a lot from you going further. Thank you so much, Surbi ma'am. Okay, thank you, Sindhu ma'am. Thank you. Then we have with us Mayanka Sharma ma'am. So if I talk about Mayanka ma'am, I got motivated with the video. अगर आप लोगों ने पीछे एक बहुत ही viral video देखा होगा in which kids are wearing dresses made up of newspapers and waste material and doing a catwalk. हम बहुत सारे लोगों ने शायद ये वायरल वीडियो देखा होगा. So you have a source of that video today with us. So the source of the video has been Mayanka ma'am, her school, where they came up this innovative idea कि क्यों ना बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल के हमको कैटवॉक कराया जाए. And हमेशा हर चीज फैशन से रिलेटेड नहीं होती है. शायद मॉडलिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फेज सेल्फ एस्टीम होता है, which she actually brought in those kids with a wonderful session. So she is working in Manipuri UP at present, and she has not just transformed the school, she has transformed the complete village. ऐसे बच्चों को पढ़ाना जहाँ पे पूरे background में you have kids who families which are completely drowned into drugs or some bad practices, और वहाँ से बच्चों को उठा के उनको best practices के अंदर लेके आना and motivate करना. So I believe Mayanka ma'am, you have done some wonderful work, and indeed she has been awarded by NCERT and NEPA for the wonderful work she has contributed in that area. Welcome to the panel, Mayanka ma'am, for today. Okay, I think welcome. So last but not the least, we have a very dynamic young leader with us, Shashank Srivastav ji. He has been with us and he introduced us to the best practices in education with zero investment. That's what we learned from him last time when he was on the panel, and he allowed us to know कि education बिना पैसे के भी हो सकती है अगर नियत हो. तो वो चीज इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराई. He gave us some good references about books and authors and also the practices which they are following at Aurobindo and also in his own organization Open Ocean, जिसे recently जिसमें इन्होंने बहुत सारी नई चीजें include करी, and also running a very beautiful free competition for students throughout India, to completely free of cost. So Shashank ji, welcome for the session and welcome to the panel for today's discussion. I think you are on mute, so. Thank you once again for having me, and it's really nice being with all such lovely educators around, and especially being with you over here. Okay, thank you very much. So चलिए आज हम start करते हैं. तो हम आज का जो session है, the questions, I would begin with
वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे मुझे लगता है चैलेंजेस की बहुत संभावना रही थी. तो रानू रोशन सर, आप ओडिशा से बिलोंग करते हैं, यू आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर बेल्ट. I just want to understand that how were you able to manage in your school in this present scenario? How were you able to manage assuring कि बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है even if tools नहीं है, the tools were not present, ICT tools were not present. How did you did that? सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Just a second. Actually, I'm working on a remote sensing school, and the attendance is very low. That's why I get some initiatives to create attendance, and also some spin and win games and other activity by the students, by which they come to school without any hesitations, and that is very complicated to very difficult to come to school. That's why I arrange some TLM, some game for the students. Okay, thank you sir, thank you very much. मयंका मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये बात फर्दर कि अगर हम यूपी के जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे बच्चों का जो बिहेवियर है या फिर जो पेरेंट्स का सपोर्ट है वो इतना नहीं था, बहुत शुरू से ही बहुत चैलेंजेस रहे हैं. So how did you actually manage in this present pandemic कि already शायद वहाँ पे hygiene issues थे, people were not following the best practices, and आपको बच्चों को तो पढ़ाना था, तो were the tools available? What was the situation completely for you? एक्चुअली ड्यूरिंग लॉकडाउन एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही थी कि एक हम जो विलेज है वो बहुत अनअवेयर है, तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि हम उनको अवेयर कैसे करें. तो यहाँ पे मैंने बच्चों से फोन पे बात की, तो उन्होंने उनका सपोर्ट मिला, तो मैंने कहा आप स्लोगन्स लिखिए और पोस्टर बनाइए और पूरे गांव में लगाइए. तो एक तो ये अवेयरनेस का काम बच्चों ने बहुत अच्छे से किया कि अब उनके पास में पोस्टर्स नहीं थे, तो वो क्या करते, तो उन्होंने आर्ट कॉपी के जो पीछे का हिस्सा होता है, जो कि बैकग्राउंड होता है वो प्लेन होता है, तो उसपे उन्होंने कोविड से रिलेटेड पोस्टर्स बनाए, स्लोगन्स लिखे और उनको पूरे गांव में लगाया. फिर सेकंड प्रॉब्लम अब ये आ रही थी कि हमारे सामने कि हम बच्चों की लर्निंग को कैसे एश्योर करें, उनकी जो पढ़ाई या उनकी शिक्षा बाधित हो रही थी हम उसको कंटिन्यू कैसे करें. तो इसमें फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस की एक शुरुआत करी, आपकी कक्षा आपके घर के नाम से. लेकिन फिर उसमें यही प्रॉब्लम थी कि जो गार्जियंस थे, पूरे गांव में केवल 10 ऐसे पेरेंट्स थे जिनके पास में मल्टीमीडिया फोन्स थे. तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम 10 पेरेंट्स को लेके हम काफी जो ज्यादा एक बच्चे थे उन तक हम एजुकेशन को कैसे पहुंचाएं. तो फिर हमने जो और भी ऐसे लोग थे जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे थे, तो उनसे बात की कि जो ग्रेजुएट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैंने इंक्लूड किया और उनसे बोला कि आप 10 बच्चों को अपने साथ में जोड़िए, ताकि जो मैं काम आपको भेजूं वो आप 10 बच्चों को दिखाइए और कराइए. ऐसे उनके हमने लर्निंग को थोड़ा एश्योर करना शुरू किया. फिर लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आई कि वो जो स्टूडेंट्स थे जो हमें एक ब्रिज की तरह हमारे साथ काम कर रहे थे, एक ब्रिज बने हुए थे हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में, उन्होंने कहा हमें डेटा की प्रॉब्लम है और हम बहुत दिन तक इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते. फिर हमने एक इनोवेटिव प्रैक्टिसेस का हमने सहारा लिया, तो हमने उसको नाम दिया ज्ञान की दीवार या एजुकेशन वॉल. तो उसमें क्या हुआ कि हमने एक अभी थोड़े दिन पहले जीरो इन्वेस्टमेंट बेस हमने एक व्हाइट बोर्ड भी बनाया. तो वो हमने बच्चों को बताया कि आप वो बोर्ड कैसे बना सकते हैं. बच्चों ने वो बोर्ड बनाया. अब जो 3-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फोन है, मैं उन बच्चों को वो काम भेजती हूँ और वो बच्चे उस मार्कर पे लिख के उसको अपने घर की बाहरी दीवार पर टांग देते हैं. और उसमें जो गांव के बच्चे होते हैं उनको जब टाइम मिलता है एक एक करके आते हैं, उस काम को नोट करते हैं. किसी हेल्प की जरूरत होती है तो वो 5 बच्चों से पूछते हैं और अपने घर चले जाते हैं. इससे एक प्रॉपर सोशल जो डिस्टेंसिंग होती है वो भी पूरी तरह से मेंटेन होती है. कोई एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है, बच्चे ग्रुप में नहीं आ रहे होते हैं, कोई क्लास नहीं लगा रहे होते हैं. जब उनको समय मिलता है वो आते हैं, काम को नोट करते हैं और अपने घर जाके उसको करते हैं. तो इस तरह से हमने लगभग 60 बच्चों को जोड़ रखा है और 5 बच्चे हैं वो 60 बच्चों को काम वो हैंगिंग करके उसको ज्ञान की दीवार है और उसी में वो जो अवेयरनेस कैंपेन है वो भी कभी कभी लिखते हैं. तो इस तरह से हम ड्यूरिंग कोविड हम बच्चों को कुछ लर्निंग दे पा रहे हैं.
थैंक यू मैम। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ज्ञान की दीवार। मैंने डोनेशन वॉल्स के बारे में सुना था जहाँ पे लोग अपना सामान डोनेट कराते थे, बट ज्ञान डोनेट करना और अपने घर को घर की दीवार को यूटिलाइज करना उस प्रैक्टिस के लिए, आई थिंक आई नेवर हर्ड दिस कॉन्सेप्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और ये बात बहुत सच है कि गांव के अंदर, वर्क इन रूरल एरिया, वहां पे बच्चे एक दूसरे के घर के सामने से बहुत ओकेजनली गुजरते हैं, तो ये जी भी बहुत ही प्यारी है उनके लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए। एंड आपने बच्चों को ही टीचर्स बना दिया, सो अल्टीमेटली यू डेलीगेटेड द वर्क एंड दे देमसेल्फ हैव बिकम टीचर्स। अगर वही बच्चे 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आई एम जस्ट वंडरिंग अबाउट कॉन्सेप्ट जो वो सीख पा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा हमने ये बात सीखी मयंका मैम से। मयंका मैम, मैं आपके पास वापस आऊंगी एंड इस बारे में डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच सुचिता मैम जुड़ चुके हैं नाउ। अगर हम सुचिता और मैम की बात करें, ये अभी बिल्कुल अपना क्लास करके वापस लौटे हैं एंड आई थिंक शी नीड्स अ ब्रेक फॉर अ व्हाइल। तो सुचिता मैम का इंट्रोडक्शन अभी हम ओके, शी इज हियर विद अस। अगर सुचिता मैम की बात करें तो आप खुद इमेजिन करके देखिए, आप किसी गांव में पढ़ाने जा रहे हैं एज अ प्रिंसिपल, एज अ हेड, और वहां जाके आपको मिलता है कि इंडिया के फ्लैग की जगह पे एक ब्लैक कलर का फ्लैग लगा है। सो आप कितना कंफर्टेबल होंगे उस गांव के अंदर जाने में भी, या उस स्कूल के अंदर एंटर करने में भी। ऐसे एरिया के अंदर खुद को हेड बना के काम करना। शी इज वर्किंग इनटू अ नक्सल एरिया स्पेसिफिकली इन झारखंड, एंड वहां पे जाके काम करना, बच्चों को मोटिवेट करना एंड टू मेक श्योर ऐसे एरिया में जाके 15 अगस्त की परेड कराना और 26 जनवरी की परेड कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड व्हेन शी हरसेल्फ हैज इन्वेस्टेड इनटू दैट बैंड, इवन जो वो ड्रम है वो खुद के पैसों से लेके आना। तो सुचिता मैम इज अ हीरो, अ टीचर हीरो इन हरसेल्फ, जो वहां पे काम कर रही हैं, एंड शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। सुचिता मैम, वेलकम टू द टुडेज सेशन एंड वी आर ग्लैड कि आप बिजी होने के बावजूद ज्वाइन कर पाए in today's session. Thank you for coming. Okay, good evening. I will come back to you with a question. You can take a break. Okay, so now I will go to Anil sir, Anil Mishra sir. तो अनिल जी, एक बात बताइए सर कि अगर मैं आपकी बात करूं तो लकीली आई बिलीव यू आर इनटू एन एरिया जो इस वक्त शायद बहुत अफेक्ट, नॉट लकीली बट यू आर इनटू एन एरिया व्हिच इज अफेक्टेड अ लॉट, बट यस लकीली इन द वे कि आपके लिए किसी भी तरह के रिसोर्स का अरेंजमेंट शायद चैलेंज नहीं होना चाहिए। But we have been listening quite facts and figures about the type of education that is happening in Delhi region right now. So मैं आपसे बहुत specifically समझना चाहती हूँ कि how were you able to tackle out the situation in your particular schools, in your particular belt over there? सर आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। Okay, let me just जी मैडम। तो सर अगर हम बात करें तो आपको किस तरह का चैलेंज आया when you were working with kids? More about 60% students are connected to us through mobile phones at WhatsApp groups. Nowadays, I have tried to connect them and to connect them, advised to make WhatsApp groups. And according to report taken by me last week, approximately 60% students are connected to WhatsApp group, and some students who are from other states, they have gone to their hometown. They are not connected to me. So the students are also advised to consult with their parents in forming a group. And in this way, and my activities which are given on WhatsApp group are based on known things which are commonly known in international level. As we are suffering from corona. कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो दुनिया अगर आज मुट्ठी में न होती तो हम इतने परेशान न होते। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारी एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रीज, सॉयल, अर्थ, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वर्ड्स,
These all are everywhere in the world. So our activities given to students when they are away from us, based on these things. During lockdown period, I have played an activity in from our place. I have told you just location at longitude and latitude, because I have recently played an activity to determine circumference of the earth, and it is very easy to calculate circumference of the earth. Thousands of science clubs related to DST and Vigyan Prasar have played this activity, and through this activity, when we estimate the diameter and circumference of the earth, it is very interesting. And I have talked about students, they are very eager to know how is it possible. Even they have calculated with the help of a smartphone, but they want to know how we can calculate circumference of the earth. So it is very interesting activity, and I want to explore it nationwide in other schools also. Okay, thank you very much, May- Anand. Yeah. Yes. May I explain? No, we will get back to you in detail. Okay. Thank you. I think sir का जो answer है about कुटुंब based activities, कि हम बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, learning is everywhere, learning is in our surrounding, learning is present everywhere. तो हमें किताबों तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें शायद व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है. अगर आप ऐसा कोई करिकुलम बना रहे हैं जिसमें उनकी सराउंडिंग्स में जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उनकी बात ही कर सके उनके साथ, like the plants which are around them, the insects which are around them, so एक learning develop की जा सकती है. So that is also a very good idea. And I also had a discussion with the school somewhere in Punjab जहाँ पे वो लोग agriculture based task बच्चों को दे रहे थे, because a proper learning was not possible. So they asked them to learn more of agriculture. तो skill इकट्ठा कर लीजिए अगर आप किताबों से बातें इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं टाइम बीइंग में. It's a beautiful example, Anil sir. I would love to go to Sindhu ma'am, and I want to learn from you, ma'am, that when we were discussing about things yesterday, तो आपने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि your school acts as a role model, and you usually people come there and they visit there and they see the practices that you are following over there. Moreover, I am more interested that you allowed me to know that you and your team altogether, you were part of the team which was responsible for creating a complete curriculum map for practicing online education throughout the country. So you just helped them out in developing that framework कि किस तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी. मैं शायद उस बात को ज़्यादा जानना चाहती हूँ यहाँ पे पहले. The first question is more about it, कि क्या challenges आप लोगों को दिखे जब आप framework बना रहे थे, one, and then उस challenges को overcome करने के लिए कौन से ideas आप लोगों ने, मतलब किस तरह से आप लोगों ने brainstorm किया, वो क्या struggle था, क्योंकि हमारे पास time नहीं था. एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज करी, देयर वाज अ बिग कमिटी व्हिच वाज सेट अप, कितनी डिस्कशंस हुई थी, कितनी डिस्कार्डेशंस हुई थी, फिर भी जो ड्राफ्ट हुआ उस पे कोई एक फाइनल टेक नहीं ले पाया, एंड वी एंटर्ड इनटू अ डिफरेंट सिचुएशन. आपके पास तो टाइम ही नहीं था, शायद हफ्ते 10 दिन का टाइम था कि आपको पूरा का पूरा करिकुलम और फ्रेमवर्क बना के सामने रखना है फॉर द होल कंट्री. सो आई जस्ट वांट टू नो द स्ट्रगल इन 5 मिनट्स कि किस तरह से वो करा. 5 मिनट बहुत कम है, बट आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड दैट. प्लीज मैम. Yes, Surbhi. The whole world today has been pounced upon by the fright of COVID-19. We have been experiencing the lockdown right from, it's been 2.5 months now. The educators, the parents, the students are in a different state of mind. So we want to focus on learning rather than schooling. There is so much of uncertainty in everybody's
mind right now. When are the educational institutes going to start? What will be the variations in the new academic year? Will wearing mask and social distancing be a new norm in the new academic year? Will the students be attending classes every day, or will they have to attend on alternate days? Or will there be complete digitalization of the education system? The questions are many, and we needed to answer them as per the circumstances, as per the situations, and as per the resources that are available to us. So we proposed and we are practicing the educational model during a lockdown. The model was proposed around 1.5 months back. There are several steps that are involved in this educational model. The first step that we did is, of course, the new educational model prioritizes digital learning or e-learning, but we have taken into consideration the non-ICT methods also to take care of the students who lack devices, who lack internet connectivity. So we went stepwise. The first step was a virtual survey. We conducted a telephonic, that is the virtual survey. Actually, the inspiration was our own government of Goa. They had conducted here the COVID survey. So we took the concept from there and we conducted virtual survey to find out how many of our students have Android mobile phones with internet connectivity, or the devices like laptop or the desktop. And to our surprise, we could find that 77% of our students have internet connectivity, the Android for mobile phones with internet connectivity in the devices, and 23% students were not having that. So even if that percentage was 50 or less than 50, we would have gone with some other model. But since the number was good enough, that a 77% was a considerable number, we thought of going ahead with our model that we thought of. The second step that we did is concept mapping. Even the MHRD is talking about, compressing the concept. So what we did is we mapped the concept subject wise. Rather than preparing digital modules class wise or chapter wise, we focused on making digital modules subject wise. Say for example, if a lesson is there, 5th, 6th, 7th standard, the lesson photosynthesis there. So we prepared one just single module of around 10 to 15 minutes on that photosynthesis, wherein all the audio visual aids, the module was made very interesting, using various aids and various techniques and various digital virtual platforms and open educational resources were incorporated in these modules. Now, those 23% of the students who were not having the devices and who were lacking the internet connectivity, we have employed non-ICT methods for them. Now, here we have taken care of those students using our SMC members, school management committee members. We have involved the community elements like the village panchayat. We have involved the village library. We have involved the ex-students. So these people are acting as supervised owner, because I strongly believe that when you give supervised ownership to the community, then we can bring out the change in the system. Then we have also taken care of these non-ICT students right from, we have introduced extracurricular activities. We have introduced co-curricular activities to the students, because taking care of the students, the health of the students is the prime importance these days. So right from this Arogya Setu app, how we are supposed to download, what information we are supposed to get, what activities they are supposed to conduct, what physical education activities, what right from performing arts to drama, what kind of activities will make them feel stress free and will make them active, that also we have focused in our educational model. Now regarding the drawbacks also, I strongly believe that the screen time, the students should not be seeing the gadgets, all these Android mobile phones and desktop for a long time. So we have minimized the screen time also. So
we have decided, we have already started circulating digital modules. So we have decided maximum 5 modules will be circulated to them, and non-ICT methods, we have taken care of those students by circulating the worksheet, by distributing the textbooks. So this drawback, that minimizing the screen time, we have taken care of by minimizing the modules that we are going to circulate. And we have also thought of how we are going to take care of all this digital content once the face-to-face or the classroom teaching starts. Obviously, nothing can match face-to-face or classroom teaching. So when the classroom teaching, actual classroom teaching will start, we will compile all these digital modules and online content, and we'll be using it as a database as a reference material to aid teaching learning process when the actual classroom teaching starts. So this is how stepwise we have proposed, and we have been practicing the educational model, which has been appreciated throughout the state and the country. Thank you so much. Yes. Okay, thank you very much, Sindhu ma'am. That was quite a detailed idea of how the framework was set, from beginning with the virtual surveys and building of concept maps, and the beautiful idea that why do you have to map digital content based on chapters when you can actually map them based on concepts instead. I think that is applicable to all. There are topics which are universal in most of the grades, and we can pick up on those topics. And then, yes, I love the idea of supervised ownership. Because if you give that feeling of ownership to the village people, to parents, to panchayat, तो शायद वो ज़्यादा ध्यान रख पाते हैं. And मैंने तो ये बात बहुत note करी है that when you give it to people from panchayat or from that area, they are very strict and efficient in making sure कि बच्चे सब कुछ follow कर रहे हैं या नहीं follow कर रहे हैं. So yes, that was a beautiful concept. Okay, so I would like now like to go to Suchita ma'am. So Suchita ma'am ने काम किया है in a particular area which I believe could be difficult for any one of us, कि अगर हमें कहा जाए to work in, she's working in Jharkhand area. So ma'am, I would love to ask you this question, that first question is, and then I would like to ask you about the second question. That my question is कि वहाँ पे जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया है कि it's very tribal in approach, वहाँ पे what is the level of internet connectivity in your area? That's my first question. यस मैम, मेरा झारखंड के खूंटी जिला और अड़की ब्लॉक में रहती हूँ, जो बहुत ही इंटीरियर है, जहाँ पर नेट नहीं पकड़ता है, और ऐसे इस जगह पे रोड की भी समस्या है ना, और ऐसे क्षेत्र में बच्चों का आना जाना स्कूल बहुत प्रॉब्लम है. लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मैं एक इंचार्ज हेड मास्टर होने के नाते मैं उनके गांव तक गई कि कैसे उनको मैं स्कूल ले पाऊँ, और उनके गार्जियन से मिली तो सभी ने कहा कि मैम साइकिल नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी समस्याएं बताई. लेकिन भी मैंने कोशिश किया कि चलो 8th क्लास में साइकिल मिलता है, सबों को हम साइकिल दिलवाते हैं, और इस मतलब मेरे विश्वास से सभी बच्चे अब आते हैं. और ये मेरा एक पहला चैलेंज ही था कि नेट नहीं भी रहेगा तो हम आपको पढ़ाएंगे. और मैंने बहुत कोशिश किया. हमारे झारखंड में जो सचिवालय है, वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी आईसीटी के लिए. मैंने कहा कि सर मुझे आईसीटी कंप्यूटर लैब चाहिए, तो उन्होंने कहा क्या, क्योंकि मेरा इतना इंटीरियर एरिया है, बच्चे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं और रांची नहीं जा सकते, खूंटी नहीं जा सकते, अगर स्कूल पे रहेगा तो वे हर चीज यहाँ पर सीख पाएंगे. और मेरे ही कहने पर मैडम मुझे आईसीटी लैब मिल गया है, 11 कंप्यूटर है, और बच्चे बहुत अच्छा से यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं. तो इस प्रकार से अभी जियो का इंटरनेट चल रहा है, मेरे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वे इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, बल्कि अपने ही स्कूल में सीख करके बहुत बच्चों ने तो अभी कहीं कहीं पर जॉब भी पकड़ लिया है. तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर इंटरनेट गांव में आ गया है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है. ओके, थैंक यू मैम. मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, कि आप बच्चों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आप लोग या आपके टीचर्स उन एरियाज में गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर हमने किस तरह से उनके लिए एक सेटअप बनाया कि एजुकेशन कंटिन्यू हो सके, एंड इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो कोविड के
साथ हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग का क्लॉज आता है, एंड देन पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, सैनिटेशन को मेंटेन रखना है, क्या उन पैरामीटर्स को आप लोग मेंटेन कर पाए थे और किस तरह से मेंटेन कर पाए थे? यस मैम, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने कहा कि मुझे भी इस कोविड-19 में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ड्यूटी मिली थी और मुझे भी लग रहा था कि मैं इस महामारी में कैसे ड्यूटी करूंगी। फिर भी से मैं चली गई। मुझे पूरा अपना ब्लॉक के जो सिंदरी प्रखंड है, सिंदरी गांव है, वहां मुझे ड्यूटी पड़ी थी और मैंने सोचा कि यहाँ पर कैसे व्हाट्सएप ग्रुप मैं तैयार करूंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर था टीचरों को। तो मैं वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जब डोर टू डोर सर्वे कर रही थी, उसी समय बच्चों के साथ मैंने उनका नाम और व्हाट्सएप नंबर लेते गया। और जिस एरिया में मैं नहीं पहुंच पाती थी, तो मेरे बहुत सारे टीचर हैं, जिसमें पारा टीचर भी हैं, पारा टीचर, और कुछ वहीं के टीचर हैं जो प्रत्येक गांव में रहते हैं। मैंने सबको एक रूटीन बना दिया कि फलाना गांव में आप ड्यूटी करोगे, ये गांव में आप ड्यूटी करोगे। इस तरह से एक सरकारी और एक पारा टीचर को मैंने डिप्यूट किया था और इस प्रकार हमने डोर टू डोर चावल भी बांटा। चावल के साथ साथ उन्हें हम जो कुकिंग कॉस्ट है वो पैसे भी हाथ में दिए। अपने मास्क लगा करके डोर टू डोर, बच्चे भी इसी तरह से, मेरे पास वो फिगर फोटो सब भी है मैम। और इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में मेरा कवर हो गया। सारे टीचर्स ने मुझे बहुत मदद किया है। सभी अपने अपने टोले में घूम घूम कर चावल, पैसा और व्हाट्सएप ग्रुप कलेक्शन किया और इस तरह से भी बहुत सारे मेरे टोटल 666 बच्चे हैं, उसमें 200 ऐसे बच्चे हैं जिसके पास व्हाट्सएप है, बाकी के पास व्हाट्सएप नहीं है। इस प्रकार हमने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस महामारी में भी कुछ प्रयास किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। सो अब मैं शशांक सर आपके पास आना चाहूंगी एंड ये जानना चाहूंगी बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन ओपन ओशन एंड आप औरबिंदो सोसाइटी से भी जुड़े हैं। सो हम तो यहाँ पे कुछ 100-200 टीचर्स की बात करते हैं, आप शायद 15-20 लाख टीचर्स की बात करते हैं जहाँ पे आप लोग रीच आउट करते हैं। So my question is that were you able to conduct some training sessions or were you able to conduct some information session for these teachers who were facing this challenge कि बच्चों के पास ना फोन है, ना टेक्नोलॉजी है, ना मोबाइल, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पर हमको तो पढ़ाना है। सो वो जो सिचुएशन है उसके लिए आपकी तरफ से कुछ सेशंस हुए हों या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टीचर्स के लिए करा हो उनको समझाने के लिए या कोई माध्यम बना हो? I want to understand that. As you mentioned, इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं. So to help out the teachers, what we did, as in last session we discussed, we a part of Sri Aurobindo Society, we have collected a huge number of innovative practices. So उन्हीं टीचर्स का वीडियो उन्हीं के द्वारा की गई एक्टिविटीज का बना के हमने टीचर से शेयर किया. एंड लाइक वी आर डिस्कसिंग नॉन ICT टूल्स कैसे यूज किया इस कोविड सिचुएशन में, टीचर्स ने कैसे कनेक्ट किया. सो उन टूल्स को यूज करके, उन वीडियोस से प्रेरणा लेकर, प्लस हमारी टीम रेगुलर टीचर्स के टच में रही, सपोर्ट करती रही कि कैसे ऑफलाइन हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं. और उस एजुकेशन को जिनके पास इंटरनेट नहीं है या जिन बच्चों के पास, या गांव में आपको एक अभी रिसेंट बता दूं, एक गांव में एक 12th का बच्चा है जिसके पास एक के पास इंटरनेट फोन है. तो उस टीचर ने उस बच्चे को एक वॉलंटियर बना के उसके थ्रू क्वेश्चंस भेजे, उसके थ्रू कंटेंट भेजा और ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ाया यूजिंग दी सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल. उसके बाद होमवर्क वो सेंड करता था, टीचर उसको साइन करती थी. तो इस तरह की एक्टिविटीज यूज करके टीचर्स ने यूटिलाइज किया है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है. ऑडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेजे. Okay, I think that's a wonderful idea where teachers are actually क्योंकि कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा है. So the teacher who was intended and who was focused कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने अपने ही स्कूल के अंदर, अपने ही ग्रुप के अंदर लीडर्स खड़े करे, अपने ही स्टूडेंट्स को लीडर्स बनाया और उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे. उन लीडर्स को बोला कि आप ये इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर शेयर करें. एंड कहते हैं ना कि कभी भी कोई काम करा हुआ है वो वेस्ट नहीं होता. तो जिन टीचर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को रिकॉर्ड करा, नॉट जस्ट फिजिकल मीडियम में बट डिजिटल मीडियम में, जस्ट एक कलेक्शन के लिए, मे बी कभी यूज करने के लिए अपने चैनल के लिए, वो कलेक्शन एकदम से एक बोनस की तरह सामने आई in this situation where they were able to use these videos to circulate with each other. So I think यही एक reason है हम ये best practices करते हैं जहाँ पे हम ये information exchange कर सकें आपस में एक दूसरे के साथ, and वो एक information को पकड़ के ना बैठे कि मुझे idea आया है तो मैं अपने पास ही रखूंगा. So we want to share that information. That's a very good practice, Shashank sir. So मैं वापस आना चाहूंगी अनिल सर के पास. So अनिल सर, मैं दूसरे फेज की बात करना चाहूंगी कि हमने ये बात तो कर ली है कि कहीं ना कहीं
सिर्फ आईसीटी टूल्स होने का बेनिफिट बहुत था कि जिनके पास तो आईसीटी टूल्स थे उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, जिनके पास नहीं थे तो उन्होंने जैसे कि बात करी हमें मयंका मैम ने कि उन्होंने ज्ञान की दीवार बनाई, या फिर उन्होंने स्टूडेंट लीडर्स बनाए, या फिर उन्होंने एक्चुअली पेरेंट लीडर्स बनाए, वहां पे कहते हैं ना कि सुपरवाइज लीडरशिप स्टार्ट करी। सो ये चीजें करी। सो दैट इज समथिंग, एजुकेशन तो पहुंचाई गई, कुछ पहुंचा पाए कुछ नहीं पहुंचा पाए, पर हम उन लीडर से बात कर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन को पहुंचाया बच्चों तक। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट रीओपनिंग द स्कूल्स इन नेक्स्ट 2 months, और शायद सीनियर स्टूडेंट्स के लिए तो बातचीत चल ही रही है कि 8th ऑनवर्ड्स बच्चों को बुला लेते हैं, लेट अस बिगिन विद द स्कूल्स। सो आर यू वर्किंग ऑन सम प्रिपरेशन कि आप इस सिचुएशन में जब आप स्कूल रीओपन करेंगे तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, एंड अगर बच्चे आएंगे तो क्या आप उनको मैनेज कर पाएंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे? क्या वो घबराहट आपके दिल में नहीं है कि इतने सारे बच्चों में से किसी एक को इन्फेक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे? इंसान तो आप लोग भी हैं। सो क्या वो फियर कहीं ना कहीं आता है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कि व्हाट अबाउट दैट इंफॉर्मेशन गेटिंग, दैट इन्फेक्शन गेटिंग circulated in such a large group of students who are moving around here and there? So Anil sir, आपके रीजन में, आपके स्कूल के एटमॉस्फेयर के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं इस प्लानिंग को लेके? जी मैडम, इस बात के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, और अभी मैंने कल ही क्लस्टर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है अपने विद्यालय के एसएमसी, प्रिंसिपल, टीचर्स जितने भी हैं। एक गूगल मीट की मैंने कल ऑर्गेनाइज, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि यार को तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम एक साथ नहीं बुला सकते, इसलिए हमने ये प्लान किया है कि हम पहले जो बोर्ड क्लासेस वाले बच्चे हैं जो कि अप्रॉक्स 1000 हैं, उनको बुलाएंगे पहले। और उसके लिए मैंने ये भी देखा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी रूम्स कितने हैं, जैसे 59 रूम्स हैं मेरे पास, तो उसमें 20 स्टूडेंट्स पर क्लास अरेंज किए जाएं, उनको किस तरह से रो में बिठाया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। ये सारी व्यवस्था मैंने प्लान कर ली है अपने क्लास टीचर्स को बोल करके, और कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस दिन पर बुलाए जाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहते हुए हम उनके साथ कनेक्ट हो सकें और आगे की बात कर सकें। और इसके साथ ही जो सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम है कि हाथों को उनकी भी सफाई होनी चाहिए, पर्टिकुलर कहाँ पर कितने बच्चे किस दिन किस पीरियड में आएंगे, इस सब के लिए हमने अपने विद्यालय में 4 जगह ऐसे स्थान तय किए हैं जहाँ पर बच्चों को पहले प्रॉपर वे में हैंड सैनिटाइज करके और तब क्लास में जाना है। इस तरह की सारी व्यवस्था जो और सपोर्टिंग स्टाफ पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि क्या हमारे पास अवेलेबल है, सफिशिएंट है, क्योंकि पहले जो सर्कमस्टेंसेस थी कुछ और थी, अब कुछ और होंगी। इसके लिए तैयारी चल रही है क्लस्टर लेवल पर भी, और जिसमें जो हमारे क्लास टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनके पास हमारा डेली मैसेज पहुंच सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए मैंने एसएमसी की हेल्प ली है। एसएमसी के माध्यम से उनको मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि वो स्कूल आने से पहले किस तरह से तैयारी करें, और इसके लिए जो हमारा सिलेबस का फ्रेमवर्क है उसके लिए भी ऐसा प्लान किया है कि मान लीजिए 4 दिन हम हफ्ते में किसी बच्चे को बुला पाते हैं, तो उसमें पहले दिन जो है हम उनसे ऑनलाइन जो सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसमें ईएमसी क्लासेस और हैप्पीनेस करिकुलम और डेली इंग्लिश एक्टिविटीज, ये सभी स्कूलों तक सभी बच्चों तक पहुंच रही हैं। इनके अलावा जो डिस्कशन हम बच्चों से करेंगे वो क्लास में करेंगे फेस टू फेस। तो हमारा प्लान ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ क्लासरूम स्टडी और जो बाकी 2 डेज हैं उसमें एक दिन असेसमेंट और होमवर्क, इन पर डिस्कशन किया जाएगा। तो इस तरह से
सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है, जिसको मेंटेन करते हुए हम बच्चों की, वो कहा जाता है ना कि सेफ्टी फर्स्ट ड्यूटी नेक्स्ट, तो हमारा प्रयास यही होगा कि बच्चे सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है कि हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, मतलब लगभग ट्रिपल टाइम लग जाएगा सभी बच्चों को स्कूल तक लाने में और उन तक कोई एक मैसेज या चैप्टर डिलीवर करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच अनिल सर। टाइम लग जाएगा पर काम जरूर होगा, मुझे पूरा हर विश्वास है काम पूरा कर पाएंगे जी। काम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट, एजुकेशन तो बाद में भी दी जा सकती है, बट अगर बच्चों जी की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी किसी भी अध्यापक के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। सो थैंक यू वेरी मच जी सर, आई थिंक बहुत अच्छा इंसाइट आपने दिया एंड आई द प्लान इज वेरी गुड। जिस तरह से आप एग्जीक्यूट करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे पब्लिक स्कूल के अंदर फैसिलिटीज एक लिमिट तक रहती है एंड बजट्स भी वहां पे लिमिटेड रहते हैं, उसके जी अंदर सब कुछ बैलेंस करके चलना और अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना और बच्चों की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना इज वेरी मच important and needed. So we also have with us राजेश सर। राजेश सर, हम आपके पास 2 मिनट में आएंगे। उससे पहले हम एक्चुअली पूछना चाहते हैं रानू रोशन सर से कि सर, अगर हम बात करें तो इन योर स्कूल इन ओडिशा, अब आप लोगों का जो प्लान है कि वहां पे क्या जैसे अनिल सर ने बताया कि वो जिस तरह से उसे शिफ्ट में बुलाना चाहते हैं बच्चों को या ग्रुप्स में बनाना चाहते हैं या उन्होंने स्पेसिंग करी है, क्या आप लोगों ने भी ऐसी कोई फाइनलाइजेशंस करी हैं या आप किसी और ढंग से या फिर आप थोड़ा और पालना चाहते हैं बच्चों को बुलाना? Yes, ma'am. We need psychological counseling, both parents and students in this pandemic situations. उसके साथ साथ हमें ये सोच रहे हैं कि कुछ वॉलंटियर टीचर, उस टीचर trained by the ourselves, they can easily teach the students of the village. And our government also think there is no performance assessment at the moment. Ma'am, also we grouping the students by the 3 important group and खुशी लग रहा है ये कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक हमको समय मिला है, क्योंकि हम बच्चों को 3 ग्रुप में ग्रुपिंग किया है, IQ हाई मीडियम, IQ हाई, IQ मीडियम एंड IQ लो. And in this also we separate 3 groups and day to day we also welcome to the each groups and we discuss our topics. उसके साथ साथ मैम हम जो एक्टिविटी वर्कशीट इसी तरह वर्कशीट बनाएंगे जो वर्कशीट बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए आराम से बच्चे पढ़ सकते हैं. फोर्सफुल लर्निंग एक्टिविटी एंड TLM. You know, ma'am, we know the health is more important than education. That's why we first give priority to our health. And in this pandemic situations, we have to conscious regarding both health and our educations. We know that this dangerous virus affect all the countries. Thank you, sir. Thank you very much. I think television, radio, audio clip, उसके साथ voluntary teachers and psychological counseling, ये मैम नेसेसरी हमको लिए. ओके, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप जो आपने मेजर्स बताए सभी एजुकेटर्स फॉलो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एंड वो फॉलो करना जरूरी भी है. अब ऑन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज एन इम्पोर्टेंट रोल. यस, सो दो आई फील कि बच्चों को IQ के बेस पे क्लासिफाई करना, सो उसको किसी और बेटर टर्म से हम शायद क्लासिफाई कर सकते हैं टू गिव देम अ बेटर इनसाइट. ओके, सो नाउ आई वुड लव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मयंका मैम. सो मयंका मैम, आपने ऑलरेडी बताया कि आप ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग तो कर ही रही हैं कि अगर हम बात करें दीवार के ऊपर बच्चे लिख रहे हैं पूरा का पूरा होमवर्क, पूरा का पूरा क्लास वर्क एंड अपने खुद के व्हाइट बोर्ड्स बना के आपने घर की दीवारों को ही व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, टेक्स्ट बुक्स में कन्वर्ट कर दिया है. मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि आपने अपने खुद के लेवल पे आपकी जो प्लानिंग है उसके अंदर क्या आप क्या चाहती हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद दिस एजुकेशन फेज नाउ, और या फिर अभी और थोड़ा ब्रेक की जरूरत है बच्चों को बुलाने के लिए? मैम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को.
आप मुझे सुन पा रहे हैं मैम? हाँ जी मैम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम सुन पा रहे हैं। ओके ओके। एक्चुअली मैं ये तो अभी तो स्कूल कब खुलेंगे और हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड है कि वो किस तरह से खुलेंगे। हाँ, लेकिन अगर जब स्कूल खुलेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस ये होंगे कि हम बच्चों के हेल्थ, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग पे कैसे काम करें। तो वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या ये आ जाती है कि जो हमें टाइम हम एजुकेशन को देते हैं, बच्चों को पढ़ाने में जो हम टाइम खर्च करते हैं, उसका हमें एक बहुत बड़ा पार्ट उनके हेल्थ, हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग पे खर्च करना पड़ेगा। एक ये हमारे सामने एक चैलेंज आएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस है वो ऑलरेडी लगभग देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे तो चल ही रहा है इतनी कोशिशों के बाद भी, तो हमें उसको भी मेंटेन करना होगा। तो हमारे सामने एक चैलेंज तो ये आ गया कि उसी टाइम में हमें बच्चों के सिलेबस को भी कंप्लीट करना है और उनको पढ़ाना भी है। तो इसके लिए हम अपने एक टीम वर्क पे काम करेंगे अपने टीचर्स को लेके कि किस तरह से कौन कौन टीचर हैं जो हेल्थ हाइजीन पे उनके ध्यान देंगे और हम किस तरह से उनको पढ़ाएंगे। तो इसके लिए उनका जो सिलेबस है वो टाइम से और कम समय में पूरा हो, इसके लिए हमने एक कार्ड सिस्टम अपने यहाँ पे लागू किया है। तो हमारे सारे टीचर्स उस पे काम भी कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने चार्ट पेपर जो होता है एक फुल साइज का, उसके हमने 4 पार्ट्स किए हैं और एक पार्ट पे हमने एक एक लेसन को पूरा पूरा विद आंसर्स हमने उसको बहुत अच्छे से उसको लिख दिया है। क्योंकि हम जो टीचर्स होते हैं जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब हम नोट कराते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे हम बहुत देर तक हम खुद ही लिखते हैं, उसमें टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होता है, फिर बच्चे नोट करते हैं। तो हमने सोचा है कि क्योंकि हम बहुत सारा टाइम उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने में, उनके हैंड वॉश और उनके हेल्थ और हाइजीन पे खर्च करेंगे, तो उसके लिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो हमने वो कार्ड सिस्टम बना लिया, हर टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट के कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं और लगभग वो कंप्लीशन पे आ भी गया है। तो अभी जैसे कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं और हमारे पास 25 लेसन के 25 कार्ड्स हैं जिसमें कि पूरा सिलेबस लिखा हुआ है और हम उन कार्ड्स को बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि वो हमारा जो टाइम कटिंग है वो बहुत ज्यादा होगी और बच्चे उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिख भी पाएंगे, क्योंकि हर बच्चे के पास कार्ड होगा और वो क्लियरली उसको कर पाएंगे और हमें केवल क्लासरूम में उसको हमें डिस्क्राइब करना होगा। तो इस तरह से हमने एक तो ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हम टाइम कटिंग कैसे करेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि हमने सोचा है कि हम जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम लाइन या हम सर्किल में ना करके हम जिग-जैग ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि जिग-जैग ऑर्डर में जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो ज्यादा मेंटेन होती है। दूसरी चीज ये है कि हम बच्चों के हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे स्कूल में जैसे 140 बच्चे हैं, तो हमने 14 स्टूडेंट लीडर हम अभी से तैयार कर रहे हैं, उनको अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो जब स्कूल खुलेगा तो वो किस तरह से काम करेंगे। तो वो जो 14 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो 10-10 स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी लेंगे कि उनको वो रोज ट्रेन करेंगे, कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे रहना है स्कूल में, उस तरह से ट्रेन करेंगे और उसमें हम टीचर्स भी उनका साथ देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक जो हमारा स्कूल है वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक उभर के आएगा। हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक फेयरलेस स्कूल और जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, और जैसे कि कहते हैं ना कि जब दुख आते हैं तो सब मिल के कैसे उससे हम उसको कैसे पार करते हैं, तो एक वो वाली फीलिंग हम बच्चों के अंदर डेवलप कर पाएंगे कि जब इस तरह की सिचुएशंस हो तो हमें उसको मिल के कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह से कुछ सोचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच मयंका मैम फॉर लेटिंग अस नो। आई थिंक जो एक सिचुएशन को हैंडल करने वाली बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। वो आपने बहुत प्यारी बात कही। और जिगजैग का जो पैटर्न है बैठने का, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, बिकॉज डिस्टेंसिंग मेंटेन करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बच्चों को समझाना भी मुश्किल नहीं होता, तो बच्चों को जल्दी समझ आ जाती है ये बात। थैंक यू वेरी मच मयंका मैम फॉर लेटिंग अस नो। हमारे बीच में राजेश सर। राजेश सर, क्या आप आपका माइक वर्किंग है? आप राजेश सर, आप मेरी बात सुन सकते हैं? think we have some issue with his mic. Hopefully हमारे पास 5 मिनट पड़े हैं कि अगर वो हमें join कर पाएं within next 5 minutes, that would be great. Now I would love to go back to Suchita ma'am. And Suchita ma'am, मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि
अगर हम बच्चों की सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें एंड द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि बच्चों की जो लर्निंग है, मतलब कहने की, जैसे अभी बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, काफी सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जो ये ऑनलाइन पढ़ाने का सिस्टम है ये तो बहुत ही ड्रामा है, या इट्स यूजलेस, इट्स नॉट एट ऑल सक्सेसफुल। पेरेंट्स को स्ट्रेस फील हो रहा है। मेरा खुद का बेटा 6 साल का है, तो कई बार मैं भी स्ट्रेस फील करती हूँ, मुझे उसके साथ ग्रेड 2 की क्लासेस लगानी पड़ती हैं। बट आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एज अ पेरेंट। बट मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ सक्सेसफुल सिस्टम। मैं आपसे आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि एज अ टीचर, हाउ मच डू यू एग्री टू दिस सिचुएशन की जो ये हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी जो सिचुएशन है रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन अ गवर्नमेंट स्कूल पर्सपेक्टिव, इन अ पब्लिक स्कूल पर्सपेक्टिव, आपके हिसाब से ये कितनी सक्सेसफुल है कि बच्चों को व्हाट्सएप पे आपने वीडियो शेयर कर दिया या कंटेंट शेयर कर दिया, वो यूजफुल होगा? तो प्लीज बता सकते हैं मैम? मैम, you have to unmute yourself. हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, जिस प्रकार मेरा जो एरिया है ग्रामीण एरिया है और बहुत पुअर लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से 8-10 हजार का उनके पास मोबाइल नहीं है। और मैंने बहुत कोशिश किया जिसमें मुझे 666 में, मैंने 666 में मुझे 200 पेरेंट्स और बच्चे मिलाकर, मतलब इतने ही के पास व्हाट्सएप मिला, ठीक है। और हमारे टीचर काफी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी हम जितने बच्चों को लाभान्वित हो सके वो नहीं कर पाते, क्योंकि व्हाट्सएप में हम सारे टीचर नोट्स बना रहे हैं और जो DG 7 है वो तो आ ही रहा है, और हम सभी टीचर, जैसे मैंने सभी को कह दिया है कि सभी नोट्स बना के व्हाट्सएप में शेयर करें, और सभी टीचर प्रत्येक विषय को वो शेयर कर रहे हैं। और मैं डेली उनसे कहती हूँ कि प्रत्येक से बात करो। बहुत बच्चे जो एक्टिव हैं वो बात कर रहे हैं, पढ़ाई का वो क्या लाभान्वित है वो भी बता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है। बहुत सारे गार्जियन भी बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो छोटा फोन है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें एक मेरे सर हैं, बहुत मुझे मदद करते हैं, वो साइंस के टीचर हैं। वो डेली जो नोट्स बनाते हैं वहां पर हम एक एक बच्चे को बुलाते हैं। हम लोग, मैं भी जो गाँव में थी, हम लोग शाम में घूमते थे, तो मैं डिस्टेंस के देखते हुए एक एक बच्चे को बुलाती थी कि एक एक जन आओ, हम जो नोट्स बना रहे हैं उसको आपको दूंगी। और इस प्रकार से वे बच्चे आते थे और आते भी हैं अभी तक, हम उन्हें नोट्स देते हैं, है ना। तो ये सारे बच्चे नोट्स लेके जाते हैं, फिर लिख करके वे लाते हैं। तो इस प्रकार मैं देख रही हूँ कि बहुतों के पास व्हाट्सएप नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुअर है, 8-10 हजार का वो मोबाइल नहीं खरीद सकते। एक बार ऐसे ही हुआ, जब हम लोग फोन से बात की, एक बच्चे ने तुरंत कहा कि सर हमने मोबाइल खरीद लिया। तो मेरे सर ने उनको जवाब दिया कि मैंने तो खरीदने नहीं कहा सर, आपने तो कहा था। तो देखिए किस तरह गार्जियन को ठग करके मैंने 8 हजार का वो मोबाइल खरीद लिया, जो कि एक गांव में उनके लिए, सोचिए, अनाज बेच करके उन्होंने खरीदा। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा। तो मैम हम कैसे पढ़ाई करते। तो ये मुझे अच्छा भी है खराब भी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उसे बिगड़ते भी हैं। यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम, सुन रहे हैं हम। हाँ, क्योंकि उसमें मैंने ये भी देखा कि शाम शाम को मैं जब घूमती थी तो उसमें एक भीड़ लगा के वे लोग, तो मैंने मतलब दूसरे बच्चे, हमारे बच्चे इस तरह से नहीं घूम रहे थे, वे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर व्हाट्सएप क्लास हम करें तो अच्छा ही है, बट सभी के पास नहीं है तो ये दुख की बात है, क्योंकि हम जिस तरह ग्रामीण एरिया में रहते हैं वहाँ के लिए ये उपयोगी नहीं साबित हो रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक मैम की बात बहुत वैलिड है कि जिसका पूरा अनाज को बेचकर 8,000 रुपए नहीं आना, वैसा बच्चा या वैसी फैमिली और कैसे पढ़ेंगे। और बच्चे इस बात में बहुत फोर्सफुल हो जाते हैं कि मोबाइल चाहिए तो यही चाहिए। ऐसे ही बच्चे तो देखिए सेम है, चाहे वो गरीब परिवार का हो चाहे वो अमीर परिवार का हो। जो बच्चे हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो शौक हैं, वो अलग नहीं होते। सिर्फ कुछ जगहों पे वो अपना मन मारना सीख जाते हैं और कुछ परिवारों में वो अपना मन मारना
नहीं सीखते, बट उनकी इच्छाएं ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। तो यस मैम, आपने सही कहा कि शायद कहीं ना कहीं एक ऐसे रीजन में आके आपको बहुत बड़ा चैलेंज आएगा बच्चों के साथ। जी एकदम चैलेंज है, क्योंकि गार्जियन भी बोलते हैं कि मैम हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, मैंने उनको लगता है। तो मैं बोले कि स्कूल कब खुलेगा, उनका बस चाह यही है कि स्कूल जल्दी खुल जाए, मैंने बच्चे तंग ना करें मोबाइल के लिए। मैं बोलती हूँ कि सरकार जैसे ही ऑर्डर देती है मैं खोलूंगी, और अभी ऐसे 1 तारीख से खोलनी थी तो मैंने खोल दिया है। अभी क्लास 10th के बच्चे, कुछ बच्चे आना शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सर हैं वो काफी मेहनती है, वहाँ स्कूल पर रह करके ही अपना नोट्स को उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे पास अब ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, तो मैं बहुत 2 छोटे सवाल रहे हैं मेरे 2 पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो संध्या मैम, ये आपसे पूछना चाहूंगी, आपने शुरू में कहा कि ऑलमोस्ट 77% और ऑफ योर स्टूडेंट्स दे वर हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, या आपका वर्चुअल सर्वे कहता था कि ये बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड इनके पास आईसीटी टूल्स अवेलेबल है, मे बी लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, या मोबाइल की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, सो दे हैव दीज टूल्स। एंड आपने बहुत एक इस तरह से बात कही कि आप लोगों के पास जो कंटेंट अवेलेबल था, आपने जो करिकुलम मैपिंग करके आपने जो कंटेंट बनाया एंड यू वर एबल टू सर्कुलेट दैट कंटेंट। मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही प्यारा मॉडल है जो किसी भी प्राइवेट स्कूल ने भी फॉलो किया होगा, मैपिंग ऑफ करिकुलम और उसको उनकी क्लासेस के हिसाब से मैप करके आगे भेजना। बट आई थिंक राजेश सर का कनेक्टिविटी इशू है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो सुंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द सक्सेस लेवल जो आपने काम किया कि अभी तक ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू इट्स ऑलरेडी अ फेज जहां पे इवैल्यूएशन टाइम आ चुका है, असेसमेंट टाइम आ चुका है अबाउट द लर्निंग दैट हैज हैपेंड। सो एज अ लीडर, एज एन एजुकेटर, व्हाट इज योर इवैल्यूएशन कि अगर ये सिचुएशन आगे फिर आती है, अगर ये सिचुएशन और ज्यादा कंटिन्यू करती है, देन हाउ well successful is this methodology? I won't say it's 100% successful considering the effective education and learning that happens in an offline platform, but as an online platform आपको कितना हद तक वो successful लग रहा है satisfaction level पे? Yes, Surbi. First of all, I would like to quote a beautiful sentence that I'm reading every now and then these days. We have to learn to live with Corona. It is high time now that we have to learn to live with Corona. So every crisis, I believe, comes with danger. The danger part we are already experiencing, we have been experiencing, and every crisis also comes with an opportunity. So I'm very, very positive, and I see that opportunity. We have like limited resources. I strongly believe. I belong to a government school. I belong to a very remote school. I'm the head of a remote school. So we see that as an opportunity. And when I talk about evaluation and assessment, we have different tools to evaluate or assess the students, and we are going to do that shortly. But I feel in this particular crisis or pandemic, to give it a shot and to try something new, maybe a virtual platform or involving community elements or things like that, that itself is a big achievement. The famous nutritionist, the Indian nutritionist, she says she doesn't own a weighing scale in her clinic. The reason is, I mean, Indian woman apne पैरों पे खड़ा होके आ जाए, that itself is a big achievement. So it is like that. During this crisis, we are making an attempt. We are trying to connect with the student. That itself is a big achievement. And regarding, see, I always emphasized on learning rather than, actual schooling. And as I already mentioned, nothing can replace classroom teaching or face-to-face interaction. But until now, अभी वो discussion में बात हो रही थी, climatic changes की भी बात हो रही है. Rainy season is approaching. It's almost raining heavily in Goa. So during this time, the community transmission will be more. So we have to think of some alternatives to engage with the students, and to engage with the students in
classroom also, and we have to think of some other alternative to do it. So success rate of our education model so far has been very nice. It has been adopted. Teachers are adopting and adapting to the new methodologies, and it has been taken over. As I discussed with you yesterday, we have trained around, I'm the state master trainer, and we have trained around 10,000 odd teachers in Goa on this virtual platforms regarding the OERs, and we have changed our lesson plans and unit plans accordingly. So the system is ready, and we need to overcome all these difficulties and go forth and go forward. Yes. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Yes. Thanks. So Shangchi, last but not the least, I would love to take your quote on the whole scenario. कि I would suggest, I think मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब पर्सनल मानना है कि I was taking some teacher training sessions and I told teachers कि अब जो B.Ed करी थी सब भूल जाओ. So whatever you studied in B.Ed all those years, just forget that B.Ed completely. Just keep those books somewhere outside, because हमारा कहीं ना कहीं जैसे lockdown के phases हैं, तो for me it's more like teacher education 2.0, so or maybe 3.0 to be very precise, because आपका पूरा का पूरा teaching system and learning system revise हो चुका है. We are nowhere in the places where we were earlier. Secondly, with my observation, जो एक गैप था, जो एक बहुत ही प्यारी बात हुई इनटू द लर्निंग फेज, कि हो क्या गया था कि जो नए यंगस्टर्स आ रहे थे, जो नए कहते हैं ना नई सदी के एजुकेटर्स आ रहे थे, दे वर वेरी गुड विद डिजिटल टूल्स. एंड कहीं ना कहीं जो हमारे टीचर्स रहे हैं किसी टाइम पे और जो अभी भी पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने में तो बहुत एक्सपर्टीज थी, पर उनको डिजिटल टूल्स को लेके, स्मार्टफोन्स को लेके या इन चीजों को लेके बहुत चैलेंज आता था. Now even a teacher who is at 60 years of age is comfortably taking classes on Zoom or maybe Google Meet. So that's a beautiful thing that has happened, where educators got a chance to learn all over again and to forget and then to learn. So learn or relearn wala process shuru ho gaya. Now for me, like, I want you to just share a statement with me that because you keep on getting involved into practices more or less with the teachers of government schools of various states, and you get an opportunity to learn from their overview. So do you think that आपको क्या लगता है, I'm asking on a very big context as a country or as a nation, that we should include this type of education system as part of the core curriculum, जहाँ पे teachers को training दी जाए. And also हम लोग digital resources, government ने बहुत सारे resources बना रखी हैं, free resources बना रखे हैं, free libraries बना रखी हैं, but इस चीज को further utilize करने के लिए क्या practices adopt की जा सकती है? First thing I would say कि it has already been included, and as you rightly said कि जो भी 60 साल के थे, हमारे मतलब आपके और हमारे टाइम के, उससे मैम लोग जो बैठे हैं, सर लोग इनके टाइम के, they have started using these ICT tools. If there are lots of organizations including NCERT, NUPA and SCERT, or at the local diet level, teachers and the mentors have already started including ICT as a chapter and a topic today, because the future is digital experiential learning. Moving forward, this is what is required. See, classroom training, as one of our panelists said, is very important. I personally believe that one-on-one interaction is very, very important. But digital transformation is required. Today, इस सिचुएशन में जब 10 बच्चे आ सकते हैं, 10 नहीं आ सकते, या एक क्लास आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, जो सिचुएशन आगे आएगी हमें नहीं पता. एंड जो रिपोर्ट्स हैं वो भी we cannot comment on that. So for that, digital inception is very much needed, and it has already started. मैं एक example से share करूँगा. What Uttar Pradesh government has done. See, every state has utilized something or the other. What Uttar Pradesh government has done, they have created every block group. There are 872 blocks, and they have created 872 WhatsApp group. Then they have created 75 district groups. Then they have sub CRC groups where teachers are connected. So what they are doing, they are sending one material every day in the morning, whether it's an English class, it's a Hindi chapter, and that becomes the responsibility of a block education officer or a Nagar Panchayat or a Gram Panchayat or a cluster officer to get it done to the students, down to the students. And the students are learning. I have seen recently I was in Bagpat, तो मैं class पे school पे visit मेरे को बोला था, मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, and in Bagpat I was surprised that 25 students एक स्पीकर कनेक्टेड था मोबाइल से और बच्चे सुन रहे थे और उसको नोट कर रहे थे. सो दैट इज ऑलरेडी डाउन देयर. बट यस,
बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी है, क्योंकि हमारे कंट्री में कनेक्टिविटी एक बहुत इशू है, एडॉप्शन बहुत डिफिकल्ट है। और आईसीटी को आते आते अभी मुझे लगता है वी स्टिल हैव 3-4 years when completely we shift to something like a Norway or a Switzerland or a Scotland model. But yes, 3 years it's going to be digital education transformation. Digital classes across the country, teachers sitting in a studio delivering, like Kerala has already started live sessions. So ये आने वाला है. We are going to have this. So we have to live with this now, and we have to get upskill ourselves. Okay, thank you very much, Shashank. Thank you very much for the, I think the climax statement, or I think the final statement for the day. Yes, एक digital युग शुरू हो चुका है और digital युग रहने वाला है, वो अभी जाएगा नहीं कहीं पे. It is going to stay with us forever now, and we have to learn to be part of it. We cannot just escape away from it. So change is inevitable, and we have to get ourselves adapted to this change which is happening right now. So I would love to thank everybody on this panel. So Suchita ma'am, Sindhu ma'am, Shashank ji, Ranu Roshan sir, Anil ji, Miyanka ma'am. This was a beautiful panel. We were expecting some more guests, but I think the time constraints and technology constraint at times did not allow us to have an interaction with them. But the best practices in education are here to stay. Educators are here to stay, to share their expertise with us now and then. And we are expecting more of such sessions in the coming time, and more of interaction in this coming time. So thank you